I want to get into the word right now. अभी हम वचन में जाना जाएंगे इस वक्त. Today I want to talk to you about the keys to activate supernatural speed in your life. आज चर्चा करने जा रहे हैं उन कुंजियों के बारे में जो आपके जीवन में अलौकिक रफ्तार को शुरू करेंगे. How to activate supernatural speed in your life. कैसे अलौकिक रफ्तार को आप अपने जिंदगी में कार्यशील बना सकते हैं. As I was meditating upon this topic, और जैसे पासवान जी इस विषय पर मन कर रहे थे, the Holy Spirit whispered. पवित्र आत्मा ने फुसफुसाया. Many people, they don't know whether they are stagnant or whether they are moving. और देखिए बहुत सारे लोग जानते नहीं है इस बात को कि वो चल रहे हैं या फिर बस एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं. Because they are comparing themselves with others. क्योंकि वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं. And the Bible forbids us to compare ourselves with one another. और देखिए बाइबल हमें इस बात से मनाही करती है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना है. We can learn from each other, हम एक दूसरे से सीख सकते but हैं, we are not to compare ourselves and grow conceited. लेकिन हमें अपने को दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए. Now what happens is, और देखिए क्या होता है, it's like we are using a wrong reference point. और ऐसा होता है कि हम दूसरे ही संदर्भ का भाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं. Now let me break this thing right चलिए now. इस बात को सही पेश करते If हैं. you are waiting अगर आप इंतजार में रुके हुए where you are supposed to be walking, जबकि आपको चलना चाहिए, then there is a problem somewhere. तो कहीं तो समस्या है. You're waiting, आप ठहरे हुए हैं, but you are supposed to be walking. लेकिन आपको चलना चाहिए था. Secondly, दूसरी बात, if you are walking अगर आप चल रहे हैं and you think everything is right, और आप सोचते हैं सब कुछ सही है, but you are supposed to be running, लेकिन दरअसल आपको दौड़ना चाहिए था, then you need to change. तो आपको बदलने की जरूरत You है. need divine speed. You need supernatural speed in your life. तो आपको आपके जीवन में दैवीय रफ्तार, अलौकिक रफ्तार की जरूरत है. If you are running अगर आप दौड़ रहे हैं and you think, oh, everything is fine, और आप सोचते हैं सब कुछ सही है, but you were supposed to be flying, लेकिन दरअसल आपको उड़ना चाहिए था, then you need supernatural speed in your life. तो आपको अलौकिक रफ्तार की जरूरत है अपनी Somebody जिंदगी say, I'm receiving this word right में. now. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ. Stop comparing yourselves with one another. एक दूसरे से अपनी तुलना करना बंद करें. Don't look at somebody else and say, oh, I'm better than that person. और किसी और को देखकर ऐसा मत कहे, ओ इस व्यक्ति से मैं ज्यादा बेहतर Our हूँ. reference point, our example is Jesus. हमारा Hallelujah. उदाहरण, हमारा मिसाल जो है वो यीशु होना चाहिए. So somebody say with me, enough is enough in the mighty name of कोई तो Jesus. कहे ऐसा बस बहुत हो गया यीशु के समर्थी नाम I में. want to go to a new level. मैं एक Hallelujah. नए स्तर में जाना चाहता हूँ. When you have this kind of attitude, देखिए जब आपके पास इस प्रकार का रवैया होता you है, are a candidate for divine speed. तब आप दैवीय रफ्तार के दावेदार But if बनेंगे. you start comparing yourself with somebody who's down there, लेकिन अगर आप अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जो नीचे कहीं पड़ा हुआ है, you will say, oh, I'm better than this one. और आप कहेंगे ओ इस व्यक्ति से मैं बेहतर हूँ. You see that Pharisee, he started comparing himself with somebody and the Lord was displeased. आप देखते हो उस फरीसी को जो अपनी तुलना दूसरों से कर रहा था और अपने को बेहतर बना रहा था, लेकिन प्रभु उससे नापसंद किया. Go with me to the book of 1 Samuel chapter 30 now. जल्दी से निकालेंगे पहला शमूएल उसका 30वां. This is about David. और देखिए दाऊद के बारे में है. David was in a situation where he had lost everything. दाऊद ऐसे हालात में था जहां पर वो सब कुछ गंवा बैठा था. His wife, his children, his goods. और देखिए उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके सारे सामान. He was in a situation where his own people were speaking against him. वो ऐसे हालात में आ गया था जहां उसके खुद के लोग उसके खिलाफ में बोल रहे थे. And they were not only talking against him, they were about to stone him. और देखिए वे लोग सिर्फ उसके खिलाफ में बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको पत्थर वाह करने के लिए भी तैयार थे. They were saying that the problems are because of you. और वे ऐसा कह रहे थे कि ये सारी मुसीबतें हम पर आई तुम्हारे वजह से. It's a terrible position to be in. और इस प्रकार की स्थिति में होना बहुत ही भयानक है. How do you come out of it? कैसे आप इसमें से बाहर आएंगे? And we catch the word in 1 Samuel chapter 30 and verse 8. और Everybody देखिए इस right now. दृश्य को हम पाते हैं पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय It says, David inquired of the Lord. 8वें वचन में, और दाऊद ने प्रभु यहोवा से पूछा, And he said, shall I pursue this enemy? क्या मैं इस शत्रु के दल का पीछा करूं? Shall I overtake them? क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? Notice this right now. गौर करें यहाँ पे. And God answered him. और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया. Notice what God answered him. और गौर करें प्रभु ने क्या उत्तर He दिया. said, David, प्रभु ने कहा दाऊद, first thing, pursue. पहली चीज पीछा कर. Pursue. पीछा Are कर. you listening right now? सुनिए, He said, pursue your enemy. Don't just give up. He says, pursue your enemy. देखिए परमेश्वर ने उससे कहा कि दाऊद अपने शत्रु का पीछा कर. बस यूं ही हार मत मान लो, The पीछा करो. second thing, दूसरी you चीज, shall overtake. तू उनको पकड़ लेगा. And the third thing, और तीसरी and चीज, without fail, you will recover all. और नाकाम हुए बिना सब कुछ तू छुड़ा लाएगा. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. All throughout our life, और देखिए हमारी पूरी जिंदगी भर, we've heard stories like slow and steady wins the race. और देखिए हमने ये कहानी को सुना है कि धीमा और स्थिर रहना दौड़ को जीत लेता है. But how many of you know that this thing doesn't work in real life? लेकिन कितने लोग जानते हैं कि असलियत की जिंदगी में ये चीजें काम नहीं करती. That's why in the spirit realm, overtaking is allowed. और Hallelujah.
Hallelujah. इसी वजह से हम देखते हैं कि आत्मा के आयाम में आगे निकलना ये अनुमति मिलती है। God told David, परमेश्वर ने दाऊद से you're कहा, not just going to run after them, तुम्हें सिर्फ के पीछे दौड़ना ही नहीं है, you're going to overtake them. लेकिन जाकर तुम्हें उनको हराना है। And you're not only going to overtake them, और सिर्फ तुम जाकर उनको पकड़ोगे ही नहीं, you're going to recover and go about everything that you have ever lost in the years behind. और जाकर तुम वो सब कुछ लौटा लाओगे जो कुछ तुमने बीते समय में गंवाया था। Somebody shout hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया, I want to tell somebody watching right now, और कोई तो जो देख रहे हैं उससे कहना it चाहते हैं, does not matter who started first. इससे फर्क नहीं पड़ता कौन शुरू पहले करता है, It matters who comes first at the end. लेकिन मायने ये रखता है कि आखिर में पहला कौन आता You है। see, maybe you had a tough beginning. You started very small. You didn't have books to study. You went through a lot of tough times. और शायद हो सकता है कि आपका शुरुआती दौर बहुत Yes. ही कठिन रहा होगा। आपके पास पुस्तकें नहीं थे पढ़ने के लिए। आपको Yes. शुरुआत करने में, भले आपने छोटे से शुरुआत किया, लेकिन वो शुरुआत करने में भी आपको बड़ी कठिन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा Maybe होगा। you're on a very small job. शायद हो सकता है मैं कोई छोटी मोटी नौकरी But करता let me tell you, लेकिन बताने दीजिए, pursue. पीछा करो। It's not time to stop. It's not time to give up right now. और ये रुक जाने का या हार मानने का समय नहीं है। It's time to pursue. ये समय आ चुका, पीछा Maybe करो। you're having few people. शायद हो सकता है आपके पास कुछ ही It's लोग time हों, to pursue. लेकिन ये समय आप पीछा You करें, will overtake everyone. जाकर आप सभी को पछाड़ देंगे, And you will recover all. आप सब कुछ लेकर You will आएंगे, be at the top. आप उच्च मुकाम पर रहेंगे। Somebody raise your hand and shout कोई तो hallelujah. अपने हाथ उठाकर चिल्लाए हालेलुया। Maybe you didn't have a big good education. शायद हो सकता है आपके पास बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई Maybe नहीं, your business is not doing so शायद well. आपका व्यवसाय अच्छे से ना चल रहा हो, Pursue. लेकिन पीछा करो, You are going to overtake everyone in that area. उस क्षेत्र के हर एक लोगों को आप पछाड़ देंगे। Raise your hand and say, I receive this word right now. हाथ उठाकर कहा, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं इस It's वक्त। time to run faster than you ever run before. और जितना पहले आप तेज दौड़े थे, उससे कहीं ज्यादा तेज अभी आपको दौड़ना How है। many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस The वक्त? Bible says Elijah ran ahead of Ahab's chariot. बाइबल ऐसा कहती है कि एलिय्याह अहाब के रथ से आगे दौड़ता हुआ It's गया। time to overtake everyone that have ever gone ahead of you. और ये समय आ चुका है कि हर एक वो व्यक्ति जो आपसे कहीं आगे गया है, उन सबको These पछाड़ are दें not आप। my ये words. हमारे शब्द नहीं These है, are the words of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के लिखे हुए वचन है। No demon, no witch can stop you. कोई दुष्ट आत्मा, कोई तांत्रिक, कोई जादू टोना करने वाला आपको नहीं रोक In सकेगा। the name of Jesus, यीशु के नाम में। lift your hands and shout your biggest hallelujah right अपने हाथ now. उठाकर अपने जोरदार बुलंद आवाज में चिल्ला हालेलुया इस You know, वक्त। some of you had problems with alcohol in your family. और देखिए आप में से कुछ लोग आपके परिवार में जो देखिए शराब का सेवन होता Some रहता of है, you had problems with poverty in your family. और आप में से कुछ लोग अपने परिवार में गरीबी का सामना You करते हैं। came from a broken family आप एक टूटे परिवार where से your आए, father left you, your mother left you. जहां पर आपके माता, आपके पिता ने आपको छोड़ And दिया, you are saying, if only I had someone to help me. और आप ऐसा कहते हैं काश मेरे पास कोई मदद के लिए होता। Many people write to me बहुत सारे लोग लिखते and say, हैं I have absolutely no one to support me. और वैसा कहते हैं मेरे पास बिल्कुल भी कोई व्यक्ति नहीं है मेरी मदद और सहायता That's के लिए। wrong. ये गलत है। God is your helper. परमेश्वर आपका मददगार Lift है। your hand and say, the Lord is my helper. हाथ उठाकर कहे परमेश्वर मेरा मददगार Say है। everyone, God is for me. और सभी लोग कहे परमेश्वर मेरे You पक्ष need में to है। change your thinking, sir. और जनाब आपको अपने सोच विचार You बदलने की cannot have a जरूरत है। victim mentality. आप देखिए पीड़ित होने का मानसिकता नहीं रख सकते। You cannot have a victim mindset and live like a victor. और देखिए No, no. पीड़ित की मानसिकता रख के आप विजयी जीवन नहीं जी सकते। You have to believe that yes, Jesus is on my side, and with the Lord I can overcome everything. Hallelujah. आपको ये मानसिकता रखनी है Yes. कि हाँ यीशु मेरे पक्ष में मेरी ओर है और प्रभु के साथ मैं हर एक Raise your चीजों पर hand. जय पा लूंगा। अपने हाथ उठाएं I want you to take up these 3 prayer points right now. और चाहते हैं कि इन 3 प्रार्थना मुद्दों को आप लीजिएगा I want you to pray like everything depended on these और prayers. ऐसी प्रार्थना करें जैसे कि सब कुछ आपका इस प्रार्थना पर निर्भर है, I टिका don't हुआ know है। about you, sir, आपके बारे में पता नहीं but जनाब, I came from a very insignificant background. लेकिन पासवान जी एक अनजान से पृष्ठभूमि से आए हैं। Nobody even looked at कोई us. इनकी ओर देखता नहीं I था। want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं God will be for you. परमेश्वर आपके लिए खड़ा I want रहेगा। you to take up these prayer points and begin to pray with me right चाहते now. हैं इस प्रार्थना मुद्दे को लेकर चलिए प्रार्थना करें हमारे साथ। Everybody who's watching me, हर कोई जो देख रहे हैं listen to me. सुनिए I हमारी। challenge you today. आपको चुनौती देते हैं। Take these prayer points and pray with me, and in a week's time you will have a testimony. Hallelujah. कि इस प्रार्थना Come मुद्दे को on. लेकर हमारे साथ प्रार्थना करेंगे कि Yes. हफ्ते भर के दौरान आपके पास गवाही होगी। Let's hit the first point right now. चलिए पहला प्रार्थना मुद्दा Say, करें। oh Lord, प्रभु। help me to go the extra mile when needed so I can be selected for greatness in the name of Jesus. Begin to pray. Begin और to कहे pray. कहे प्रार्थना करें कि Loudly, प्रभु loudly, मेरी everybody. मदद कर कि मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं जिसके लिए जरूरत है प्रभु, ताकि मैं महान तक के लिए चुन लिया जाऊं यीशु के नाम Yes, में। we go to the next prayer point right now. चले जाते हैं अब अगले प्रार्थना मुद्दे Say पर। today, कहे आज I receive power
आज मैं सामर्थ ग्रहण करता for हूँ। open doors, for a great initiative in Jesus' name. कहे एक बड़े दरवाजे के लिए, Yes, एक yes. महान पहल के लिए यीशु के नाम I में। want you to lift your hands and pray it loudly in Jesus' name. चलिए अपने हाथ उठाएं, Yes. प्रार्थना करें जोर से यीशु के नाम में। Every person at home say, today I receive power for a great initiative in Jesus' name. हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ Yes, जो yes. घर में से देख रहे हैं, बोलिए कि आज मैं सामर्थ को ग्रहण करता हूँ महान पहल के लिए यीशु के नाम में। That इस वक्त Holy Spirit release that anointing right now पवित्र आत्मा उस अभिषेक को मुक्त करे upon इस वक्त। everyone. हर एक पर। Those who are praying right now. जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त, Lord, that a great door would open for the people. बड़ा दरवाजा तेरे लोगों के लिए खुल जाए यीशु के नाम में। Receive that anointing right उस now. अभिषेक को ग्रहण करें इस वक्त। In the name of Jesus. यीशु के नाम Let's पर। go to the third prayer point चलिए right जाते now. हैं तीसरे प्रार्थना मुद्दे पर इस Say, वक्त। every curse of you shall not prosper in my life. Break by the power in the blood of Jesus Christ in Jesus' name. Begin to pray. Begin to pray. चलिए प्रार्थना करें। बोले हर एक वो शाप जो कहता है कि तू कभी समृद्ध नहीं होगा, Yes, मेरे जिंदगी में yes, से yes. नाश हो जाए इस वक्त यीशु के लहू के द्वारा। Anything that has told you, anyone, any power that has been chanting against you, that you will not prosper, your family will not prosper, that power is breaking as you're speaking right now. In the name of Jesus, lift your hands. Lift your hands and कोई भी pray. शक्ति जिसने आप पर ऐसी Yes. घोषणा की है, कोई भी तंत्र मंत्र के शब्द जो आप पर बोले गए हैं, जो ऐसा कहते हैं कि आप कभी Begin to समृद्ध pray in नहीं tongues. होंगे, Begin to call his. अपनी आवाज ऊंचा उठाएं और Yes. प्रार्थना करें कि वे Yes. सब प्रकार के शाप जो है यीशु के लहू की समझ में नाश हो जाए। Curses break now शापें टूट over जाएं। every person, हर एक व्यक्ति पर over से, every home, हर एक घर पर over से, every family. हर एक परिवार पर Break से, in Jesus' name. टूट जाए यीशु के नाम Break में। in Jesus' name. टूट जाए यीशु के नाम Lift your hand and say, every curse in my life, in my family, that has said that we will not prosper, that curse be broken by the blood of Jesus. In Jesus' name, open your mouth. फुसफुसाए नहीं, जोर से दहाड़े. Come on. अपने मुंह को खोले, जोर से Hallelujah. फुसफुसाइए नहीं, लेकिन जोर से दहाड़ते हुए आपको Open बोलना your है। mouth and begin to pray right चलिए अपना now. मुंह खोले और प्रार्थना What करें is इस समय। प्रार्थना happening? करें। क्या हो रहा है? Those curses are breaking. शापें टूट रहे Those हैं, demonic powers are leaving. जो शक्तियां निकल रही You are हैं, going to a new level. आप नए स्तर में जा रहे हैं। Lift your hands. I know some of you are crying. Some of you, something is happening to you right आप now. में से कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है आपके Holy साथ। Spirit, पवित्र आत्मा, Lord, take me to a new level. प्रभु मुझे एक नए स्तर में ले Take जाओ। me into everything that the Lord has prepared for मुझे me. ले जाओ उस हर एक स्तर में जो प्रभु ने मेरे लिए तैयार करके This is रखा how you must है। pray. ऐसे ही आपको प्रार्थना करनी चाहिए। Somebody open your mouth and shout अपना hallelujah. मुंह खोल के चिल्लाए, Let your हालेलुया। neighbors hear. Let those invisible ears, let them also hear चलिए hallelujah. आपके पड़ोसी को अपनी आवाज Yes, सुनने yes, दीजिए। हर yes. एक वो अदृश्य कान वे सुने आपका Let's say लहू। blood of Jesus. यीशु का लहू। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I tell you, कहते हैं आपसे, you shall pursue. आप पीछा करेंगे। How do you pursue? कैसे आप पीछा You करते हैं? pursue in prayer. आप प्रार्थना में पीछा करें। How do you overtake? कैसे आप जाकर उनको You हत्या सकते हैं? overtake by fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना के साथ जाकर आप उन्हें पकड़ेंगे। You see, this is where it happens. देखिए ऐसे ये होता है। You pursuing in prayer. आप प्रार्थना में उनका पीछा You करते are हैं। overtaking by fasting. Hallelujah. उपवास के द्वारा आप उन पर कब्जा करते I हैं। wish I could tell you the third one. आज तीसरी बात हम बता I सकते will tell you कहेंगे। how you receive restoration. हैं। कैसे आप उस पूर्ण स्थापना को पाते हैं। You know, some people, देखिए कुछ लोग they believe more in their talents. वे अपने गुणों में, अपने हुनर में ज्यादा भरोसा They करते हैं। believe more in their strength. अपनी ताकत में उन्हें ज्यादा They यकीन होता है। believe in their looks. अपने रंग रूप में ज्यादा उनको But यकीन होता है। David had nothing of that. लेकिन दाऊद के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। You see, every person who's risen up to the top, he's not risen up because he was something special or she was something. It's because of the grace of God. Somebody say, I receive it. हर एक Hallelujah. व्यक्ति जो बुलंदी पर पहुंचे Yes. हैं, ये ऐसी नहीं बात है कि उनके पास कोई गुण या Yes. कोई अच्छे दिखते थे, अच्छे रंग रूप थे। Come on, नहीं, let's नहीं, go. ये परमेश्वर के अनुग्रह से उनके लिए संभव Okay, हुआ। I'm going to share with you 6 keys now चलिए आपके साथ बांटने जा रहे हैं 6 चाबियों को, that will activate the supernatural speed in your life. जो आपके जीवन में अलौकिक रफ्तार को कार्यशील बना देगी। Now, if you're ready, take a pen and paper and note this down. अगर आप तैयार हैं तो चलिए एक पेपर और एक पेन ले लीजिए और लिखना शुरू करिए। Listen, सुने, you know, yesterday, देखिए कल one of my businessman's friends, पासवान जी बताते हैं, एक व्यवसायिक मित्र, he sent me a link to a conference. और उन्होंने इन्हें एक लिंक भेजा एक कॉन्फ्रेंस का। Now, I'm not lying to you. देखिए झूठ नहीं बोल रहे। This conference is, now some of you may know it. देखिए आप में से कुछ लोग जानते हैं इस बात को। This conference is called a 10X conference. 10X conference. ये कॉन्फ्रेंस जो कहलाता है 10X कॉन्फ्रेंस नाम, This conference, they pay like $4,000. और इस कॉन्फ्रेंस में देखिए हिस्सा लेने के लिए $4,000 से डालना पड़ते हैं। Listen to me. सुने, And everybody is making notes. और हर कोई इसमें नोट्स लिख रहे हैं। I'm telling you, कहते हैं आपसे, there was thousands of people watching online. और Okay. देखिए 1000 लोग जो है ऑनलाइन देख रहे हैं, And you know, there are like businessmen, some are owning like, companies of jets and Mercedes and this and that. And, some are musicians, some are like producers. And they're there and they're taking notes. और वे वहां होकर देखे और लिख रहे थे सब। Yes. जी हाँ, And I saw it. और इन्होंने देखे, And I've seen Christians. और
देखे मसीह लोगों को they never take notes. वे कभी लिखते नहीं है, And even if they take notes, अगर लिखेंगे भी the notes are thrown somewhere. They never refer to those notes. लिखे हुए संदेश कहीं They will और write everything. लेकिन वे सब कुछ लिख रहे थे। But these businessmen, ये व्यवसायिक लोग how they are so diligent. और कितने वो दृढ़ थे, They're secular people. Most of them don't believe in the Lord. और देखिए उनमें से ज्यादातर लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते। There are principles in the Word of God परमेश्वर के वचन में से सिद्धांत है that will help you to overtake, overcome. Somebody say, I receive जो this in आपकी Jesus' मदद name. करेगी कब्जा Yes. करने, उनको पछाड़ने के लिए कहे यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता Listen हूँ। to me. सुनिए हमारी, Will you please write this down? क्या आप मेहरबानी करके आप इन्हें And लिखेंगे for the next 7 days, अगले 7 दिनों put तक, it in a piece of, small, put it somewhere you can see it every day. और देखिए ऐसे किसी जगह पे लगाए जहां पर आप हर दिन देख सकते हैं And use it. और इसका इस्तेमाल And करेंगे। write to me after 7 और days. 7 दिन के बाद लिखेगा। And if something happens in your life, अगर कुछ होता है आपकी जिंदगी में, then listen to me. सुनिए सुनिए, It will happen. ऐसा होगा। Okay, here we go. चलिए आगे The बढ़ते हैं। first one. पहला है, Keys to activating the supernatural. Now, if you're just sitting and अगर आप- watching this, बस ऐसे ही बैठे हुए देख रहे हैं, ये तो कुछ नहीं होगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष। First one, go to Proverbs 4 and verse 7. चलिए निकालेंगे नीति वचन का चौथा अध्याय उसका 7वां The वचन। first key is pursue wisdom. और देखिए सबसे पहली चीज जो है वह है बुद्धि का पीछा करना। Yeah. Now, here we go. चलिए आगे बढ़ते हैं। Proverbs 4 and verse 7. नीति वचन का चौथा अध्याय उसका 7वां वचन। Now, look what God says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता Wisdom is the principal thing. है? बुद्धि श्रेष्ठ वस्तु है। Can I break that principal thing as wisdom is the number one thing? देखिए इस सिद्धांत को ऐसा बताना चाहते हैं कि बुद्धि सर्वप्रथम वस्तु है। He didn't say clothes are the number one thing. ऐसा नहीं कहा कि कपड़े सब सर्वप्रथम He चीज did है, not say fashion accessories are the number one thing. और जो फैशन के जो साजो सामान जो है वो सबसे As good as, सर्वप्रथम। he did not say equipment is the number one thing. और देखिए ऐसा भी नहीं कहा गया उपकरण जो है आधुनिक उपकरण No, ये no, सर्वप्रथम no. चीज है। नहीं नहीं नहीं, God says wisdom is the principal thing. लेकिन परमेश्वर कहता है बुद्धि जो है वो सबसे प्रमुख चीज All है, these things are necessary. और ये सारी चीजें जरूरी है, Wisdom is the number one thing लेकिन बुद्धि सबसे पहली on चीज your है। list. Therefore, get wisdom. इसलिए बुद्धि को प्राप्त करो। When God says get wisdom, जब परमेश्वर कहता है बुद्धि प्राप्त you करो, better get wisdom. तो अच्छा है कि हम बुद्धि प्राप्त करें। And देखिए in आगे क्या all you're getting, get understanding. है। और आपके सभी कार्यों में समझ को प्राप्त कर लो। So the first thing we must pray daily, pursue it. तो पहली चीज जो हमें हर दिन प्रार्थना करनी वो है पीछा करो। Lift your hand and say with me, अपने हाथ उठाकर कहें, Lord, I ask you for your wisdom. प्रभु मैं आपसे आपकी बुद्धि मांगता हूँ। You are my wisdom. आप ही मेरी बुद्धि है, You are the God of understanding. आप ही समझ के परमेश्वर। Give me your understanding, Lord. मुझे आपकी समझदारी दे। What to speak, क्या बोलना है, when to speak, कब कहना है, how to speak, कैसे बोलना है, how to raise teams, कैसे टीम को खड़ा करना how है, to build teams, कैसे टीम को how बनाना to है, manage finances. कैसे पैसों को संभालना है। Hey, begin to pray, somebody. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें कोई Can you तो। begin to pray right क्या now? कोई आप प्रार्थना कर सकते If हैं इस you वक्त? can begin to pray, अगर आप ये प्रार्थना कर your सकें, days of crying are over. आपके रोने के दिन खत्म हुए। Somebody needs to shout hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। I believe David prayed like that और पूरा यकीन है दाऊद ऐसी प्रार्थना की, because he was a गांव का छोकरा. He was a village boy. क्योंकि वो तो गांव का छोकरा था। And you can take a village boy and put him in a 5-star environment and he'll make mistakes. और देखिए अगर आप गांव के छोकरे को लेकर आप पंसीदारा वातावरण में होटल में रखते हैं, कहीं पर देखिए उससे गलतियां होंगी। Hello, are you listening right आप सुन रहे now? हैं He may walk with dragging his feet, और देखिए अपने पाँव का ऐसा रगड़ते हुए चलेगा वो। He doesn't know where to use the knife and where to use the और fork. देखिए उसे वो ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ से चमचा और कहाँ से उसका कांटा इस्तेमाल Because करना there है। are 3 things and no need 2 hands. और देखिए क्योंकि 3 चीज होती है, 2 ही हाथ है। I was like that. बात मुझे I बता want to दें। tell you. बता दें One day I आपको। went to a restaurant. एक दिन एक There रेस्टोरेंट में was a गए spoon, there was a fork, and there was a knife. और देखिए वहाँ पे चम्मच था, वहाँ पे फोक था और वहाँ पे वो चाकू भी था We did not know. और नहीं पता I'm a हमें village boy. गांव का छोकरा। So I had it completely wrong and I put पूरा अलग तरह से। the knife in my mouth like that. And people are laughing at me. लोग हंस रहे थे, You can also laugh. आप भी हंस सकते हैं। But I was a village boy, ordinary boy. लेकिन गांव के छोकरे के जैसे एकदम You सादा see, सड़के। but thank God. लेकिन परमेश्वर का The धन्यवाद। Bible says बाइबल कहती है, David asked for wisdom. दाऊद ने बुद्धि के लिए प्रार्थना And the किया Bible says और बाइबल कहती he है, walked wisely, more wisely than anybody in Saul's palace. और शाऊल के महल में दूसरे सभी लोगों से ज्यादा ये बुद्धिमानी में चला। My dear sister, मेरी प्यारी बहन, if this wisdom comes on अगर you, ये बुद्धि आपके पास आती है, I'm telling you, कहते हैं आपसे, the way you talk जिस तरह से आप बोलते will हैं, attract the right people. सही लोगों को आकर्षित Will attract करेंगे। the right resources. सही सोचों Will को आप open the अपने right आप सही doors. दरवाजे खोलेंगे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। One word, एक वचन, one sentence, एक वाक्य, one phone call. एक फोन कॉल, Everything changes. सब कुछ बदलने Raise लगेगा। your hand and say, I receive this wisdom. अपने हाथ लगा करके मैं इस बुद्धि को ग्रहण करता Lift हूँ। your hand and shout hallelujah. कहे हालेलुया। Wisdom is a coin with 2 और sides. ये बुद्धि जो है एक सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं। The first side is the direction which tells you what to do. और पहले पहलू में ये वो दिशा दिखाता है कि आपको
क्या करना है। Whenever wisdom comes to you, देखिए जब भी बुद्धि आपके पास आती the है, first side will tell you what to do. पहला पहलू जो है वो आपको क्या क्या करना The है, direction. ये है दिशा दिखाना। And the second side of wisdom is और देखिए बुद्धि का दूसरा पहलू है, instruction. वो है निर्देश, How to do. कैसे करना है। Somebody say, I receive this वो word. तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ, What to do क्या करना है and how to do. और कैसे करना। When Jesus came to Peter, आप देखते हैं जब यीशु पतरस के पास he आए, saw lack. देखा उसने कमी को, He saw famine. उसने अकाल को देखा, And now he did not criticize Peter. और उसने पतरस की निंदा नहीं की, He says, Peter, you sinner. और उसने ऐसा नहीं कहा कि पतरस पापी, In Christ there is no condemnation. मसीह में कोई निंदा नहीं है। But you see, लेकिन आप देखते हैं Jesus himself was wisdom. और यीशु खुद ही बुद्धि है। The Bible says, बाइबल कहती Paul है, understood this. प्रेरित पौलुस ने समझा And he इसे, writes in the और epistles. प्रेरितों की पत्रियों में He says, पत्रियों में Christ has लिखते हैं, been made unto you wisdom of God. और उन्होंने ऐसा लिखा कि Hey, मसीह हमारे लिए परमेश्वर की बुद्धि बन गया। and Christ, the wisdom of God, came into Peter's boat. और हम देखते हैं मसीह जो कि परमेश्वर की बुद्धि थी, जब पतरस के नाव में आया, Now listen, अब सुने, he gave him direction. उसने उसे दिशा He दिखाया। says, Peter, उसने कहा you पतरस, cannot fish in the shallow water. और देखिए तुम एकदम ऐसा पानी में तुम नहीं You'll मछली only पकड़ get सकते। worms, Peter. तुम्हें सिर्फ कीड़े मिलेंगे उसमें, You'll get small crabs somewhere. और कहीं पे छोटे बड़े ऐसे Now he कीड़े gave him direction. मिले। और लेकिन उसे फिर दिशा मिला, He said, push your boat. अपनी नाव को आगे ले जाओ। First thing, direction. पहली चीज जो है दिशा, What to do. क्या करना Now है। Peter says, Jesus, और पतरस कहता है यीशु, I've got an MBA in fishing, Lord. और मछली पकड़ने में मुझे अच्छी अच्छी My डिग्री मिली, father, my grandfather, his great grandfather, we were fishermen. और मेरे पिता, मेरे दादा और परदादा, वे हम सारे But के thank सारे God मछुआरे Peter थे। heard. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, पतरस ने सुना। Listen to me. सुनिए, The next came the instruction. उसके बाद हम देखते हैं निर्देश आया, How to do it. कैसे करना He है। says, Peter, उसने कहा take पतरस, your net, अपनी जाल put लो, it on the right side, दाईं ओर डालो, and you'll get the और fish. तुम्हें मछली मिलेगी। You see, this is how it आप operates. देखते हैं इसी तरीके से काम Somebody receive it right कोई now. तो ग्रहण करे इसको। Wisdom. बुद्धि। Peter pursued it. पतरस से पीछे Peter किया understood it. और समझ लिया वो। And what और happened? क्या होता है? Listen to me. सुनिए, What other fishermen caught? जो दूसरे मछुआरों ने पकड़ा था, Peter overtook them all. और Hey! पतरस ने उन सब को पछाड़ दिया, They went with one boat. और वे एक नाव उसके They साथ गए। came back with one boat. वे लौट कर आए थे एक ही But नाव के साथ, Peter went with one boat. लेकिन पतरस गया था एक He नाव से, came with two boats. लेकिन दो नाव के साथ You need वापस to आया। shout like you lost it. Somebody shout. आपको Hallelujah. चिल्लाना है एकदम पागलों जैसा, You need to say hallelujah. कहने की जरूरत है, हालेलुया। Don't cry you lost your job. अपनी नौकरी आप गवा बैठे, इसलिए रोए मत। It's the best thing that happened to you. For the next 2 days, begin to pray. I tell you, you will become a boss. Hallelujah. Receive, receive, receive. श्रेष्ठ चीज जो आपके साथ हो सकती है कि रोना बंद करें और बैठ के 2 दिन Yes. प्रार्थना करें कि आपको बता दें बॉस बनेंगे आप। Lift your hand. अपने हाथ And उठाएं, say, oh God of wisdom, हे बुद्धि के I परमेश्वर, come to you. मैं तेरे पास आया I हूं। know you will never refuse anyone. मैं जानता हूँ आप किसी को त्यागेंगे नहीं, I ठुकराएंगे have नहीं। made many mistakes, oh मुझसे God. बहुत सारी गलतियां हुई हैं But प्रभु। today I ask you for wisdom. लेकिन आज मैं आपसे Wisdom, बुद्धि मांगता हूं, बुद्धि, knowledge, ज्ञान, understanding. समझदारी। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Go with me to Proverbs chapter 3 right now. चलिए निकाल नीति वचन का अध्याय 3, And let's read verse 13 onwards. पढ़ेंगे उसके 13 वचन से। Blessings pour over the ones who find wisdom. और वह व्यक्ति जिसे बुद्धि मिल जाता है, उस पर आशीषें उंडेली जाती हैं। Blessings pour. It's not drops, pour. और Hallelujah. देखिए बूंदे नहीं टपकती उस पर, लेकिन आशीषें उंडेली जाती है, For they have obtained living understanding. क्योंकि उन्होंने देखिए जीवित समझदारी को पाया है। Watch this. गौर करें As verse 14. आगे 14 वचन में, As wisdom increases, और जैसे बुद्धि बढ़ती जाती है, a great treasure is imparted. My एक महान goodness. संपदा या महान खजाना सौंपा जाता है, Greater than many bars of refined gold. और बहुत सारे जो एकदम ताए हुए सोने से कहीं ज्यादा। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है, As wisdom increases, जैसे बुद्धि बढ़ती जाती है, a great treasure is imparted. उसके वजह से बड़ी संपदा सौंपी जाती है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Many of us, देखिए हमें से बहुत सारे लोग, we have the right heart, हमारे पास दिल तो सही है, but we have an empty head. लेकिन हमारे पास खाली सिर होता है। You know, we have good intentions, हमारे पास इरादे अच्छे होते but हैं, we don't have the power to do it. लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं होती उसे Look करने at की। Solomon's life. और सुलेमान की जिंदगी को देखें, Do you know? आप जानते हैं Solomon's life, सुलेमान की जिंदगी, he had no enemy. उसके खिलाफ में कोई शत्रु ही नहीं David थे, fought and fought and fought. और दाऊद अपनी जिंदगी में लड़ाई लड़ता रहा, Listen, सुने, Solomon had no enemy, लेकिन सुलेमान का कोई दुश्मन no नहीं adversary. और कोई विरोधी नहीं। His kingdom was just increasing. उसका राज्य बस बढ़ता चला गया। How? कैसे? It was wisdom. ये बुद्धि था। Sweatless victory is found in wisdom. ना पसीना बहाए विजय पाना ये बुद्धि से मिलती Is है। it possible, Pastor? पासवा जी क्या असंभव है? Because you see, sweat was under the curse. क्योंकि आप देखते हैं पसीना बहाना जितने शाप के अधीन में था। You go to Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक में That's what the Lord is. यही तो प्रभु चाहता है। When the priest went to minister before the Lord, आप देखते हैं जब याजक जाते प्रभु की सेवा टहल he करने, had to wear linen trousers because sweat was not allowed in the presence of God.
क्योंकि एक प्रकार का जो मलमल का ट्राउजर उन्हें पहनना पड़ता, क्योंकि पसीना जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बहाने की उनको इजाजत नहीं Sweat थी। was part of the curse. और पसीना ये तो श्राप के We अधीन में था। operate in the wisdom of God. लेकिन जब हम परमेश्वर की बुद्धि में काम करते हैं, The battle of sweat is over. It will be sweatless victory. Somebody say, I पसीने की receive. लड़ाई जो है ये खत्म हो जाती है, बिना पसीना बहाए विजय ये हमारा हिस्सा बनता है। Raise कोई your तो कहे, hand मैं and ग्रहण say, I करता हूं। receive this word in अपने Jesus' हाथ लगा name. कर मैं ग्रहण करता हूं इस वचन को यीशु How के does that anointing of supernatural speed come on you? कैसे आपके जिंदगी के ऊपर वो अलौकिक रफ्तार का अभिषेक आता The है? first one, पहला है wisdom. बुद्धि, Second one, दूसरा है shun negativity. नकारात्मकता से आपको सावधान रहना Stop है। speaking negatively about yourself अपने बारे में नकारात्मक बोलना बंद करें or about others या फिर दूसरों के बारे में, because the Lord doesn't like it. क्योंकि प्रभु इसे पसंद नहीं करता। Don't start speaking about yourself. अपने बारे में ऐसा नकारात्मक I बोलना know मत। nothing is going to happen मैं जानता हूं now. कुछ नहीं होने वाला, I don't know नहीं बताऊं how far I will go. कितनी दूर मैं जाने I've वाला been हूं। praying and nothing is happening. प्रार्थना कर रही हूं, कुछ हो नहीं रहा। I've been watching this service and nothing is happening. Don't speak like that. ऐसी बातें नहीं करें। God doesn't like this. परमेश्वर ऐसी बातें पसंद You नहीं see, करता। this was a problem of the आप Israelites. देखते हैं, यही तो समस्या थी इजरायलियों की। Go with me to Numbers chapter 11 right now चलिए निकाले गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, and verse 4. उसका चौथा Now अध्याय। the mixed multitudes who were among them yielded to intense craving. So the children of Israel wept and said, who will give us meat to eat? और देखिए वचन में कहा, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? Who will give us meat to eat? हमें मांस मटन खाने को कौन देगा? Verse 5. We remember the fish. See what they're remembering. और देखिए पांचवा वचन देखिए, हमें वो मछलियां याद आ रही हैं Which we freely ate in Egypt. The cucumbers, the melons, the leeks, the onions and the garlic. जो हम मिस्र में बिल्कुल मुफ्त में खाया करते थे, और वे ककड़ी और खरबूजे और प्याज और लहसुन। But now our whole being is dried up. Watch लेकिन अब this. हमारा पूरा जी घबरा गया है। There is nothing at all except this manna before our eyes. यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ हमारे आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। You know what their problem was? आप जानते हैं उनकी समस्या क्या थी? Their problem was their mouth. उनकी समस्या उनका मुंह था। They wanted the food of Egypt in their mouth. और देखिए उन्हें मिस्र का खाना उनके मुंह में चाहिए They था। wanted the flesh instead of the manna in their mouth. और देखिए मन्ना का उनके मुंह में होने के बजाय वे मांस खाना चाहते They थे। wanted to enter the promised land, और देखिए प्रतिक्रिया देश में वो जाना तो चाहते थे, but they were remembering what happened in the past. लेकिन जो उनके साथ बीते समय में हुआ था उसको वो याद कर रहे थे। And they never saw what God did for them. और देखिए जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था कभी उसकी और उन्होंने देखा ही Their नहीं। mouth was the problem. उनका मुंह उनके लिए समस्या Many था। people have this problem. देखिए बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत है, They are praying on one side एक ओर से वो प्रार्थना करते and हैं they are speaking negatively on one और side. दूसरी ओर वो नकारात्मक बोलते They are हैं, cursing their children. अपने बच्चों पर शाप बोलते You हैं fellows, nothing good will happen. और तुम लोग ऐसे कुछ भला नहीं होने वाला। I want to tell the children, if your parents have been cursing you, let that curse break in Jesus' name. Come on, बच्चों somebody. से कहना चाहते हैं, अगर Hallelujah. आपके माता पिता ने इस तरह से नकारात्मक Yes. बातें आप पर बोली है, श्राप के शब्द बोले, वे श्राप टूट जाए यीशु के Are नाम you में। listening right now? आप सुन रहे हैं? Stop speaking negatively about yourself. अपने बारे में नकारात्मक तौर पे बोलना Don't बंद say, करें। I don't think I'm going to live. You ऐसा will मत live. बोले कि मुझे नहीं लगता मैं जीऊंगा या We will live and see the glory of हम God. जिएंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Somebody say amen. कोई कहे आमीन। Proverbs 18 says, death and life are in the power of the tongue. नीति वचन का 18वां अध्याय ऐसा कहता है, जीवन और मौत जो है जबान के वश में है। Your mouth can either hinder your speed or it can increase your speed. देखिए आपका मुंह जो है या तो आपकी रफ्तार को ये रोक सकता है या आपकी रफ्तार को बढ़ा सकता You है। know how Jesus started his ministry? आप जानते हैं यीशु ने सेवकाई कैसे शुरू की? He did not say, oh God, where are you? Please help और me. उसने ऐसा नहीं कहा, हे परमेश्वर तू कहाँ है? मेरे All पास these मेरी मदद Pharisees are sitting in front कर। of ये me. सारे फरीसी लोग मेरे सामने बैठे हैं। You know what he said? आप जानते हैं यीशु He ने कहा, opened the book तुमने पढ़ा? and he says, the Spirit of the Lord is upon me और उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है because he has anointed me. क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। Everybody is saying, hey, this fellow is a carpenter. सभी लोग कहने लगे, अरे ये व्यक्ति तो बढ़ाई है। Jesus didn't care what they said. और यीशु की इस बात की परवाह नहीं थी, वो He क्या said, कहते I've हैं? come to heal the sick, I've come to deliver the people, I've come to preach the acceptable year of the Lord. Speak the things that the word of God says about you. Lift your hand and say, I am the righteousness of God. Say it. और यीशु ने Say कहा it. कि मैं बीमारों को चंगा Say करने, कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए आया, प्रभु के प्रसन्न के वश का प्रचार करने आया। Say आपको it. बोलना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बनाया Say, गया हूँ। God is with me. Hallelujah. परमेश्वर मेरे साथ है। I will enter new realms. Hallelujah. आयाम में कदम God रखूंगा। will provide for me. परमेश्वर मेरी चीजों का इंतजाम This करेगा। is the way you speak. यही तरीका आपको बोलूँ। So you need to confess positive things about your life. तो आपको अपनी जिंदगी के बारे में सकारात्मक चीजों की घोषणा करना Even है। if you have failed in the past exams, you should say, I am going to top my college. अगर I am going to बीते top my school. समय में आप Hallelujah. परीक्षा में नाकाम हो गए तो भी आपको कहना है कि मैं अपने कॉलेज में सबसे उच्च सर्वश्रेष्ठ बन के बाहर आऊंगा। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Somebody raise your hand and shout amen, somebody. अपने हाथ चिल्लाएं आमीन इस वक्त। The third thing, तीसरी चीज। write this down please. चलिए जल्दी से लिख लीजिए। Spend time with God every day.
परमेश्वर के साथ हर दिन समय बिताएं। Don't spend time only when you need him, you know. और सिर्फ तभी जब आपको जरूरत हो रही है समय नहीं बिताना है आपको। God, परमेश्वर, where are you? कहाँ है तू? He said, I'm always here. Where are you? You परमेश्वर know. कहेगा मैं तो हमेशा यही हूँ, तुम No, कहाँ हो? spend time with God every day. हर दिन परमेश्वर का समय बिताएं। You know, have a fixed time for that. और देखिए उसके लिए एक नियुक्त समय रखें अपने Please पास। understand. समझिए। You know, seeking God, of spending time with God should not be a burden. It should be a delight. और देखिए प्रभु की खोज करना या प्रभु के साथ समय बिताना ये कोई बोझ जैसा नहीं, आनंद और खुशी की वजह से Nobody ऐसा होना eats food as a burden. Oh no, I have to eat food now. चाहिए। और कोई भी देखिए खाना जो Nobody होता says है that. बोझ के मारे नहीं खाता। ओ बाप रे, They अभी ये खाना delight क्या in है? it. Wow, नहीं, they- उनको खुशी मिलती है। Who eats food as a burden? और कौन इंसान जो है खाने को एक बोझ के जैसा खाता You है? see, your delight must be in God. और देखिए आपका आनंद और प्रसन्न होना ये प्रभु For में होना some, चाहिए। prayer is like a burden. Oh और कुछ no, लोगों के लिए प्रार्थना करना एक बोझ होता है। अरे I have बाप, to pray now. अब मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। That's why prayer doesn't work for you. इसलिए प्रार्थना आपके लिए काम नहीं करती। Go with me to Psalm 37 and verse 4. और चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 37 उसका चौथा वचन। See what the word of God says. देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन Delight कहता है, yourself in the Lord. अपने आप को प्रभु में आनंदित कर। Delight yourself in the Lord. प्रभु में अपने को आनंदित करो। And what happens when you reach that position? और क्या होता है जब आप उस मुकाम पर He आते will हैं? give you not your needs. Lord, please, can I have a, No, He will give you the desires of your heart. और देखिए वो सिर्फ आपकी गरज ही नहीं, लेकिन आपके दिल में की जो तमन्नाएं हैं उनको भी वो पूरा There is करेगा। a place of prayer. Come on, देखिए somebody. प्रार्थना का ऐसा स्तर होता है Where you meet, God meets your needs. जहां पर परमेश्वर आपकी गरज जरूरत को पूरा करता है। Hello. सुनिए, And there is a place. और ऐसा भी मुकाम होता है Now, where you start delighting yourself in Him. जहां पर आप परमेश्वर में अपने आप को आनंदित करते हैं। Where you are supposed to meet Him at 5 o'clock. और देखिए आपको 5 बजे मिलना है उससे, You're already ready by आप 4 to पहले 5. से ही 4:45 बजे तैयार रहते हैं And you're like, let me go now. और आप कहते हैं अरे चलो भी मचा 5 o'clock. Yeah. 5 बजे चलो। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Nobody has to, kick you out of bed, pull you out of bed. और किसी को देखिए आपको 10 आपके alarm बिस्तर पर clocks से पलंग ringing, पर से no. उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, धक्का मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। You know this is my time with God. आप जानते हैं कि ये मेरा समय You परमेश्वर से are मिलने का। delighting yourself in the Lord. आप प्रभु में अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं। Come on, सुने somebody. कोई तो। And you know what? और आप जानते हैं क्या? Things which you desired, you didn't tell anybody. और देखिए वही चीज है जिसकी आप तमन्ना करते हैं, किसी को आपने बताया नहीं। Then things will start coming. वे चीजें आपके पास आने लग जाएंगी। Come on, somebody receive this word right चलिए now. कोई तो इस वचन को ग्रहण Can करें I इस tell you वक्त। something? क्या आपसे बता There are सकते हैं? things in your heart आपके दिल में ऐसी you चीजें cannot share it with anybody. जिनको आप किसी से शेयर नहीं कर Whom सकते। do you share it with? किससे आप साझा God करेंगे? knows what you need. परमेश्वर जानता है आपको क्या Come जरूरत on, receive it, receive है। it. चलिए ग्रहण करें। It's not only your need. ये सिर्फ आपकी गरज ही नहीं है। The Bible says, बाइबल कहती है। Aksa asked only one spring, और देखिए अक्सर इस आस ने सिर्फ एक ही चीज को, एक सोते को मांगा, but her father Joshua, लेकिन उसके पिता he said, यहोशू Beta, you don't take this only, you take this also. Hallelujah. उसने कहा कि बेटे तुम यही मत ले लो, ये भी तुम ले लो। Come on, lift your hand and say, I receive this word right चलिए now. अपने हाथ उठा करके इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। You prayed for one bedroom, may God give you 2 bedrooms. आपने एक Hallelujah. बेडरूम के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको 2 बेडरूम दे दे। Why not? क्यों नहीं? God is not scared if you asking 2 bedrooms, देखिए परमेश्वर इससे डरेगा नहीं कि आपने 2 बेडरूम मांग लिया हो। Yes, bring your parents along with you, live as a family. चलिए Come अपने on. माता पिता को भी साथ में रखें। Yes, और glory एक to परिवार के Jesus. साथ जिए। चलिए यीशु The की fourth महिमा। thing, engage in purposeful fasting at least once a week. और देखिए उद्देश्य के साथ सप्ताह में एक बार तो भी उपवास का सत्र में जुड़ Some जाए। Christians, कुछ मसीह लोग they don't know when they fasted. और उन्हें पता ही नहीं होता कि कब वे उनको उपवास करना है या उपवास करना The people who fast and pray, है। जो लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं they are history makers. वे इतिहास रचने वाले लोग होते हैं। They are the people who change history. वे ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को बदल के रखते हैं। Jesus told the disciples, यीशु ने चेलों से कहा, He said, यीशु ने कहा, this kind ये जाति does की, not go without fasting and prayer. ये जाति की दुष्ट आत्मा जो है उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती। Notice He did not say prayer and fasting, He says fasting and prayer. देखिए गौर करें, यीशु ने प्रार्थना और उपवास नहीं कहा, उपवास और प्रार्थना कहा। There's a reason for that. You see, there are certain blocks, और देखिए ऐसे कुछ खास अड़चने होती there are certain strongholds. कुछ अलग और खास प्रकार के ऐसे मजबूत गढ़ These होते are generational strongholds. हैं। और ये कहलाते हैं पीढ़ी पीढ़ी के मजबूत गढ़। Please understand और this. समझिए ऐसे, They need to be uprooted और उन्हें उखाड़ा जाना जरूरी so है that you can fly on the highway of holiness. ताकि आप पवित्रता के जो राजमार्ग पर उड़ान भर सकें। I want you to understand this, church. चाहते हैं कि आप इस बात को समझ जाएं। So once a week, तो हफ्ते में एक बार spend time in fasting. उपवास में समय बिताइएगा। You say, God, I'm fasting. And you know what? और आप कहें What परमेश्वर did उपवास not करना, happen in 10 years? जो 10 साल में आपके लिए नहीं हुआ। I'm speaking out of experience, और देखिए church. अनुभव के वजह से बता रहा It will happen in 1 year for you. हूं, ये आपके लिए 1 साल में होगा। You know, when I started ministry, जब पासवान जी ने सेवकाई शुरू I की, read a great man's book, परमेश्वर के महाजन की पुस्तकों ने पढ़े, Changing History Through Fasting and Prayer. उपवास और प्रार्थना के जरिए इतिहास को बदल, I would fast twice a week. और हफ्ते में 2 बार उपवास किया करते I थे, still do. अभी भी करते हैं। Praying for the church, praying for the people. कलीसिया के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना I करता, saw things moving fast. चीजों को और तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा। Listen to me, this is the सुनिए, key ये एक चाबी है to supernatural speed. अलौकिक रफ्तार के लिए। But you see, many people, लेकिन बहुत सारे the लोग, Bible says the belly is their God.
बाइबल ऐसा कहते हैं उनका पेट उनका परमेश्वर है। But if you can deny that fellow लेकिन अगर उस व्यक्ति को आप नकार देंगे and say, God, I need you more than my food and drink. और आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे मेरे खाने पीने की चीज से ज्यादा आप लें, After 3 months, you'll write to me 3 महीने के बाद आप लिखेंगे and say, Sir, और कहेंगे जनाब my life has gone to a new level. मेरी जिंदगी के Hallelujah. नए स्तर में गई है, Raise your hand and receive it. अपने हाथ Hallelujah. उठाकर ग्रहण करिए, Stop crying. रोना बंद करें, Receive this word. इस वचन को ग्रहण करें। Lift your hand and say, I receive in Jesus' name. अपने हाथ उठाकर कहें, मैं ग्रहण करता हूं यीशु के So नाम में। the fifth one, पांचवा है, choosing the right kind of relationships. सही प्रकार के संबंधों का चुनाव करना, This is a big one. ये बहुत ही बड़ा है। You know, we cannot choose our family, देखिए हम अपने परिवार का चुनाव नहीं कर where सकते we were born. कि हम कहाँ Like, we जन्मे, cannot tell God, God, I just don't want to be born in India. I want to be born somewhere there, you know. और देखिए आप परमेश्वर ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु देखो मैं ना भारत देश में जन्म नहीं लेना चाहता, मैं इसके बाद कहीं वहां पर जन्म लेना चाहता हूँ, नहीं। What's wrong with India? और भारत देश में क्या खराब, Blessed nation. आशीषित देश है, Hallelujah. कहे हालेलुया। You cannot choose your family, आप अपने परिवार का चुनाव नहीं कर but सकते, you can choose the people who are around you. लेकिन जो लोग आपके आसपास हो उनका चुनाव आप कर सकते हैं। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस You वक्त? see, people will either help you to move fast or they will slow you down. लोग देखिए या तो वे आपको मदद करेंगे तेज रफ्तार में आगे बढ़ने के लिए, या तो फिर आपकी रफ्तार जो है उसे रोक देंगे, Whether it is your personal life चाहे ये आपका व्यक्तिगत जीवन हो or whether it is organization. या फिर आपका कोई संगठन हो। I realize this, church. इस बात को समझे इन्होंने। If you want your organization to grow fast, अगर आप चाहते हैं कि आपका संगठन तेज रफ्तार में आगे बढ़े, I am telling you, कहते हैं you need the right people. आपको सही लोगों की जरूरत The wrong people will slow you down. और गलत प्रकार के लोग आपकी रफ्तार में धीमा Go with me to करवाएंगे। the book of Proverbs 13 and verse 20, a message translation. निकालिए समय नीति वचन का 13वां अध्याय उसका 20वां वचन मैसेज ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। It says, become wise by walking with the wise. वचन में लिखा है बुद्धिमान के साथ चलते हुए बुद्धिमान बनो। How do you become wise? कैसे आप बनते हैं By बुद्धिमान? walking with the wise. बुद्धिमानों के साथ चलते हुए, Hang out with fools मूर्खों के साथ घूमने फिरो and watch your life fall to pieces. और अपने जीवन को टुकड़ों में बंटता हुआ देखो। This is anointing by association. ये संगति करने का, मेलजोल रखने का अभिषेक है। You see, Elijah walked with Elisha. आप देखते हैं कि एलिशा वो एलिया के साथ चला, And guess what happened? सोचिए क्या होता है। The anointing came upon his life, the prophetic anointing. और अभिषेक जो उसकी जिंदगी पर आया, भविष्यवाणी का अभिषेक। Whom are you associating yourself with? आप किसके साथ मेलजोल करते हैं? Lift your hand and say, Lord, give me the right people around me. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मेरे आसपास सही लोगों को दे। Come on, say, Lord, give me the right people around me. कहे प्रभु मेरे आसपास सही लोग दे। What if everybody prayed like that? क्या होगा अगर हर कोई ऐसी प्रार्थना करने I लग जाए? tell you, the thing would just grow. Woof, it बताना would just चाहते हैं grow. कि चीजें बस रफ्तार में आगे बढ़ेंगी। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। In 1 Corinthians 15:33, the Amplified Version, do not be deceived and misled. Evil companionships, communion, associations, corrupt and deprave good manners, morals and character. इतना धोखा और गुमराही मत बनो। दुष्ट संगति जो है अच्छे स्वभाव को, अच्छे आचरण और नैतिकता और चरित्र को भ्रष्ट और The last दूषित कर one देती। is to give generously. और आखिरी जो है वह उदारता से देना। Giving is what opens the door of favor in your life. और देखिए ये देना जो है यही आपकी जिंदगी में भलाई का दरवाजा खोल देता It है। distinguishes a man to receive favor. और ये देखिए ये एक व्यक्ति को अलग कर देता है कि वो भलाई को ग्रहण कर सके। Now, please listen to this. और देखिए ध्यान से सुनिए। Whether you do it or not, that's your story. देखिए चाहे आप करें ना करें ये आपकी कहानी है। Now, please listen to me. सुनिए ध्यान से। Giving is one thing और देना एक चीज है that many people have a problem with. जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। God doesn't need our money or whatever. देखिए परमेश्वर को हमारा पैसा या ऐसे किसी चीज की जरूरत But नहीं। when we give, लेकिन जब हम देते हैं something inside of us dies. कुछ तो हमारे अंदर मर जाता है Something inside us tells the Lord that you are first in my life. और कुछ तो हमारे अंदर जो कहता है परमेश्वर, परमेश्वर तू मेरे जीवन में पहला है। Go with me to 1 King निकाले ऐसा पहले राजा की पुस्तक, chapter 3 right now. पहले राजा की पुस्तक में 3रा अध्याय। This guy, Solomon. और देखिए ये व्यक्ति सुलेमान। You see, Bible scholars tell us that when God appeared to him, he was around about 19 years old. और बाइबल के विद्वान ऐसे कहते हैं कि जब I don't say परमेश्वर that, के सामने Bible scholars प्रकट say हुआ तब उसकी उम्र 19 साल के लगभग थी। And now this guy, और अब ये व्यक्ति, his father is no more. अब उसका पिता नहीं रहा, Such a big kingdom, इतना बड़ा राज्य experienced people around him. और उसके आसपास अनुभवी लोग, And there is something he does. और वहां पे कुछ खास करता है। Watch this. गौर करें। Now the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was a great high place. Now watch this. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. चौथा वचन, और राजा गिबोन को बलिदान Yeah. चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। It was an uncommon offering. ये असाधारण सा भेंट अर्पण था। At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. और फिर अगले 5वें वचन में It देखिए, was at that same place. Hey. और गिबोन में देखिए उसी जगह पर यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन दिया। And God says to him, और परमेश्वर ने उसे कहा, what shall I give you?
मैं तुझे क्या दूं? It was the giving of Solomon that put him ahead of everyone. और देखिए ये सुलेमान का देना ही, भेंट अर्पण ही था जिसने उसे सबसे आगे रख दिया। Sir, जनाब, God is not interested in what you give. It's not like he's fed by our giving. No. और देखिए परमेश्वर इसमें दिलचस्पी नहीं होती कि हम क्या देते हैं। देखिए हमारे देने से वो खाना खाता है, It ऐसा is नहीं है। the attitude of our heart before him. लेकिन ये हमारे दिल का रवैया है उसके सामने। Your speed in the next season is determined by your giving in this season. Come on, और somebody. देखिए अगले दौर के लिए आपकी रफ्तार जो है वो इससे निर्धारित होगी कि Are you इस दौर receiving? में आपका भेंट, आपका बीज कैसा है। Your speed in the next season अगले दौर के लिए जो आपकी रफ्तार है is determined by your giving in this season. वो इससे निर्धारित होती है कि इस दौर में आप अपना बीज, अपना भेंट कैसा देते हैं। You cannot change your level without giving. और देखिए बिना दिए आप अपना स्तर बदल नहीं सकते। I know this is hard for some people. जानते हैं कुछ लोगों The devil start whispering, see. देखो लोग शैतान जो है कानों में फुसफुसा रहे हैं, देखो बोल रहे हैं आप। These are ये levels. अलग अलग स्तर हैं। These are levels. ये अलग अलग There स्तर are हैं। 30, 60, 100, 90, 100. You know, all that stuff. 30, 60, 90, 100 आगे देखिए। People of God, परमेश्वर के these लोगों, things will activate divine speed in your life. ये चीजें जो है आपकी जिंदगी में अलौकिक रफ्तार, दैवीय रफ्तार को Why कार्यशील is it बनाएंगे। that the Lord only spoke about the widow and nobody else? क्यों ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने सिर्फ उस विधवा के बारे में ही कहा, किसी और के बारे में नहीं। Why is it that God appeared only to Solomon and nobody else at Gibeon? और क्यों ऐसा हुआ कि परमेश्वर सिर्फ सुलेमान के सामने ही प्रकट हुआ और गिबोन में किसी दूसरे के सामने नहीं। Glory to Jesus.